Fine, sir. Fine, very good. You have any problem No, in sir. any subjects? You understand No, all sir. the subjects? Yes. You attend all the lectures? Yes, sir. Okay, there is no problem in any of these subjects, right? No, sir. Difficult subject for you? Sir, communication skills, sir. थोड़ा. I can understand even your problem is you lack in communication, right? Yes, sir. You lack in communication, you lack in confidence. Your confidence भी तुम्हारा इतना strong नहीं है. If some topic will be given to you to present, then you will not be able to give the justice to that particular topic, right, Chaurasia? Yes, sir. अभी हम बोलेंगे चलो भाई, just explain one program whatever I wrote today, maybe say LCM and GCD. ऐसे वीडियो में रह के, ऑडियो में नहीं, वीडियो में रह के, if you understood the program, can you explain it to your friend? Then you have to think twice, thrice, even though you have understood the program, but you lack in communication, you lack in confidence, you will not be able to explain, right? Yes, sir. Chaurasia. But this thing has to go from your life. If you want to get a better job in IT, first and foremost thing, you should have the confidence. We Yes, have the knowledge, but if the person can make out our confidence level looking at our face, then definitely we will be in trouble. Right? एक fear factor आ जाता है face में, देखते ही आ जाता है. Okay, Chaurasia. Yes, sir. So keep this in mind. Very soon we may be meeting in the offline mode after Diwali vacation, right? Classroom Yes, lectures बहुत जल्दी start होने के chances हैं students. Okay, no problem बेटा, no problem. ठीक है? Okay, sir. किसको देख रहे हो बार बार? तुम घर पे कौन है साथ में? कोई नहीं. कोई नहीं है? नहीं, sir. साइड में कोई है तुम्हारे? हाँ? नहीं, sir. कोई नहीं. कोई नहीं है, हाँ, sir. ऊपर उठा, sir. सब लोग नीचे हैं. अच्छा, ये ऊपर नीचे क्या होता है बेटा? सर घर पे. घर में ऊपर नीचे रहते हैं क्या हम लोग? हाँ बेटा, चौरसिया. हेलो. Yes, sir. ऐसा ऊपर नीचे रहते हो तो मम्मी पापा से अलग रहते हो क्या? No, sir. सर स्टडी टाइम के लिए बस. अच्छा, तो ऊपर मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ क्या, ऐसा चॉल टाइप घर है क्या बेटा? Yes, sir. अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा मेला टाइप जो बनाते हैं उसमें ऐसा रहते हैं. चलो, Yes, अच्छी sir. बात है. पढ़ाई में ध्यान देना है. फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, राइट? हम पढ़ाई में Yes, sir. ध्यान देंगे तो ये सब चीज अपने आप बदल जाएंगी. ठीक है? Yes, sir. आवर फोकस इज ओनली टूवर्ड्स आवर स्टडीज. ठीक है? और Okay, sir. लुक के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना. तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन है, तुम अपने लुक के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान देते हो, उसको कम करो और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ. ठीक है? Okay, sir. हाँ, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम. So shall I wait for some more time or shall I continue? I could see 81 students. Students, when I ended my lecture today, around 105 students were there. Morning. Sir, continue. Who is this continue, Baba? Video में तो आओ. वीडियो में आ जाओ. अच्छा बच्चा है, जरा देखें तो सही. What is your name? Continue. Hello. Continue. What is your name? Sir, Devendra Prabhakar. Please come in the video, Devendra. Sir. Yes, अच्छा बच्चा है. I'm very happy with the students. अच्छा बच्चा. Yes, Devendra Prabhakar. How are you, बेटा? I'm fine, sir. तुम भी किधर ऊपर बैठे हो कि नीचे बैठे हो? Where are you sitting? Sir, in my room. अच्छा, ऊपर है कि नीचे है? किधर है ये? Sir, inside वाला रूम, बेडरूम में. अच्छा, बेडरूम में है. ओके सर. ठीक है. इधर हेलो. ओके किधर? तुम सो तो नहीं जाते हो ना बैठे बैठे अकेले? नहीं सर. नहीं, तुम्हारा कंप्लेन आया
सो जाते हो लेक्चर्स में? No, sir. No, sir. नो सर। कोई टीचर का डिफिकल्ट टीचिंग है? सबका इजी है, समझ में आ रहा है? सर सबका सम सबका इजी है सर। मतलब कोई सब लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, सब अच्छे टीचर मिल गए हैं, ऐसा है? हाँ सर। अच्छी बात है। मेरा डिफिकल्ट होगा ना तुम लोग को? हाँ सर, समटाइम्स। ये देखो, मैं मेरा नाम लिया तो मुझे डिफिकल्टीज में डाल दिया, राइट? नहीं सर, वो क्योंकि फिर आप सॉल्व कर देते ना सर प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, राइट? देवेंद्र प्रभाकर, मैं बोला तो मुझे ही डिफिकल्टीज में डाल दिया। और मेरा नो ही सर। सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट यस मेरा सर। ही सब्जेक्ट है, राइट? क्योंकि इसमें यस सर। आपको खुद से सोचना पड़ता है, हर चीज कैसे लिखेंगे, वी हैव टू थिंक ऑन अवर ओन, राइट? यस सर। यस सर। इसमें हाँ, प्रीवियस नॉलेज कुछ भी काम नहीं करता है। दैट्स व्हाई आई विल से माय पेपर इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। सबसे डेंजर वाला पेपर मेरा पेपर है। कम्युनिकेशन ठीक है, वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, राइट? डिजिटल भी इजी है। यस सर। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब अब तक हमारा लॉजिक नहीं चलेगा, हम प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएंगे। करना क्या है, राइट? आज जैसे मैंने यस। सुबह एलसीएम और जीसीडी मैंने ब्रेकअप करके दिखा दिया, फिर भी हम प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हैं, तो मतलब क्या है, राइट? यस सर। चलो, बिगनर्स, नो प्रॉब्लम, आई विल कंटिन्यू नाउ स्टूडेंट्स, आई विल नॉट वेट नाउ। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो सर। सर आई यस सर, हु इज? कैफ अली सर। हाँ बोलो, क्या ओके। है? वीडियो में आ जाओ, थैंक वीडियो यू में सर। आके बात करो। हाँ बोलो, क्या है फली? हेलो सर, वो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव वाला सर बता दो ना। सुबह जो था वो एक्चुअली जब आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सर, मेरा नेट का थोड़ा इशू था और रिकॉर्डिंग भी नहीं है सर। बताएंगे बेटा, क्या है फली, अभी बताएंगे, ठीक है? हाँ सर। यस, क्या है फली, अभी बताएंगे। बाकी सब समझ रहे हैं क्या है फली? यस सर। चलो स्टूडेंट्स, no problem, I'll tell you carefully. Student, this is your list of, I think, first basic program I have already completed. Just have a look. Pehla practical is all done, right? Can you see my screen? यस सर। Swapping two numbers हमने किया है, finding out area, rectangle, square, circle ये भी किया है, and volume वाला भी किया है, right? यह है ना? यस सर। यस। Then the next second list में I have already done enter the month number, ठीक है? और स्विच के थ्रू ये प्रोग्राम करना है, डिस्प्ले करना है, राइट? अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द मंथ नेम यूजिंग स्विच मैंने किया है। और ग्रेटर देन 12 करेगा तो 13 या उससे ज्यादा रहेगा तो इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड मंथ, राइट? यह है कि नहीं किया स्टूडेंट्स? यस सर। We have also done check whether the given number is even or odd. This also we have completed. Check whether the number is negative, positive or zero. We have done. Next, we have done this. Write a program to find the largest of the three numbers. That also we have completed using two methods. एक मैंने if के थ्रू किया था, दूसरा मैंने conditional operator पे किया था, right? You remember this? यस सर। Yes. नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट, आज के डेट में ये दो प्रोग्राम अगर हम कर देते हैं तो मेरे दो प्रैक्टिकल वाइंड अप हो जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंड write a program to check whether the entered number is prime or not. Entered number is prime or not, चेक करना है, ठीक है? और फैक्टोरियल। फिर आगे देखते हैं हमने क्या क्या किया है, अभी तक चेक करेंगे आगे कुछ किया है कि नहीं किया है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ नंबर हमने कर लिया है, राइट? हेलो? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द डिजिट इन अ नंबर, वो भी हमने किया है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द डिजिट इन अ नंबर, वो भी मैंने किया है। ये क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। हेलो? हाँ हाँ मैम, बोलो ना।
समझा नहीं, कौन सा ऑडिट? हाँ 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 हाँ। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा ठीक। हाँ। अच्छा, कितने बजे रहेंगे मैडम वो लोग? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं, और मुझे रहना जरूरी है कि मैं किसी और को भेजूंगा तो भी चलेगा? मतलब हाँ, अबूजर को, मैं किसी और को मतलब जो। राइट राइट राइट। नहीं नहीं, समझ समझ गया मैडम, समझ गया। चलेगा मैडम, मैं देख लेता हूँ, जो भी रहेगा वर्कआउट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, am I audible? यस सर। यस सर। देखो ये दोनों प्रोग्राम एक ही जैसा है, ये वाला जो बी और ई, ये कुछ नहीं है, दोनों एक ही प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ नंबर and write a program to find the reverse of a number. Reverse of a number and reverse digits of a number. Right, students? Hello. यस सर। ये भी हमने किया हुआ है। और write a program to find the sum of squares of digits of a number. ये अभी चाहिए तो हम ये भी कर देते हैं। चलो अभी हम एक दो स्टार्ट करते हैं। Sum of squares of a digit of a number. हाँ बोलिए सर। सर एक डाउट था, प्रॉब्लम था एक्चुअली। एक एक बोलोगे तो अच्छा रहेगा, बोलो। हेलो। वो आपने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है ना? हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो हाँ, you are audible. I can सर listen you. Harshal, I can listen you. Go ahead. सर आपने वो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वाला बताया था। हाँ बताया था। हाँ सर, फिर वो ट्राई किया मैंने, तो हाँ उसमें पॉजिटिव साइन मतलब पॉजिटिव 2 या फिर 2 3 4 ऐसा कुछ डाला ना तो पॉजिटिव आ रहा है, जीरो डाला तो जीरो आ रहा है। तो नेगेटिव के लिए मैंने माइनस साइन डाल के कुछ नंबर डाला तो नहीं आ रहा है, और उसके बाद मैंने दूसरे नंबर्स डाले ना तो कुछ नल दिखा रहा है, उधर कुछ आ ही नहीं रहा। सर मेरा भी वही डाउट था, वो वाला मैंने भी ट्राई किया। तो जब मैंने 78 नंबर डाला ना तो फिर वो पॉजिटिव दिखा रहा था। जब मैंने 77 डाला ना तब वो नेगेटिव दिखा रहा था। मतलब वो तो मैंने इवन ऑड वाला ये प्रोग्राम नहीं किया था, वो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर वो वाला कोड किया था, लेकिन वो कैसे ऐसे गलत आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। Screen is visible in front of you. यस सर। यस सर। मैं आपका प्रोग्राम रन कर देता हूँ। मेरे पास जो प्रोग्राम है आप देखो, पहले रन किया मैंने। आप बोल रहे हो 77 डाला तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। हेलो। यस सर, यस सर। ये क्या बता रहा है मेरे पास जो प्रोग्राम है? पॉजिटिव, राइट? यस सर। आप नंबर दो, मैं चेक कर लेते हैं। वो दूसरा भाई हर्षल भी जो बोल रहा है, क्या हर्षल क्या बोल रहे हो, क्या नंबर डालना है बोलो। सर नेगेटिव नंबर के लिए आप साइन डाल के नंबर क्या? हाँ, माइनस साइन डाल के डालना है। मैंने -45 डाला है, तो क्या बता रहे हैं देखो। करेक्ट है हर्षल? हाँ, तो फिर सर मैंने माइनस साइन डाल के नंबर डाला, उसके बाद हाँ यस सर करेक्ट है, पर मैंने
आपके जो भी प्रॉब्लम है ये प्रोग्राम देख लो, ये प्रोग्राम को फॉलो करो, आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर रॉन्ग हो रहा है तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ आपके सामने प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, थैंक यू सर। वेरी सिंपल प्रोग्राम। आप जो भी नंबर, आई विल रन द योर नंबर, टेल मी योर नंबर। आपका जो भी नंबर है मुझे बोलो। देखो अब मैं 0 कर रहा हूँ, 0 तो 0 बताएगा, राइट? इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. यस। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। लेट अस गो बैक टू माय बोर्ड। आई एम इन माय बोर्ड नाउ। बिफोर दिस आई वाज टीचिंग एमएससी डेटा साइंस। बोर्ड में हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड नाउ आफ्टर दिस controls, the next thing is coming up is called as loops. There are 3 types of loop. One is called a for loop, next is called while loop, third is called do while loop. For loop, while loop, do while loop. अब लूप क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी चीज को अगर बार बार आपको रिपीट करना है तो मतलब लूप हो गया। जैसे आज हम लोग कर रहे थे सम ऑफ डिजिट्स, तो वो जो स्टेटमेंट था बार बार आप रिपीट कर रहे थे जब तक नंबर 0 नहीं हो रहा था, राइट? r इज इक्वल टू n%, सम इज इक्वल टू सम प्लस r, n इज इक्वल टू n/10, ये तीनों स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे थे, तो वो लूप हो गया स्टूडेंट्स, राइट? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हमें ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. लाइफ में जैसे कि मान लो लूप की कहाँ पे जरूरत है? अगर हम मे बी आप लोग ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और कितने बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? कितने भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कोर्स के लिए, तो वो कंटिन्यूअसली एक लूप हो गया। हर एक बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा, अपना डिटेल एंटर करेगा, सब कुछ करेगा, एंड वी हैव टू कीप ऑन एक्सेप्टिंग। दैट मीन्स हर स्टूडेंट्स के लिए मुझे वो प्रोसेस बार बार स्टार्ट करते रहना पड़ेगा, वो लूप हो गया। और लेकिन उसमें से मैं कितने बच्चे मेरिट में डिस्प्ले करूंगा, वो मेरा फॉर लूप होगा। कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, मेरा वाइल लूप होगा। कितने बच्चे मैं सेलेक्ट करूंगा, मेरा फॉर लूप होगा। जिससे सिक्योरिटी है गेट के पास में, जहाँ पे भी कॉलेज में, बिल्डिंग में, ऑफिसेस में, वो सबको चेक करते हैं। कितने लोगों को चेक करना है रोज दिन में, पता नहीं सर, तो वाइल लूप है। while there is a person you have to check whatever steps जो आपको बताए गए, you have to follow that steps every time, right? स्टूडेंट्स अगर मान लो जैसे रियल लाइफ में भी जैसे बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल है, तो ऑनलाइन पोर्टल है तो वो लोग कितने लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वी डोंट नो। एनी नंबर ऑफ पीपल कैन अप्लाई फॉर द जॉब। while there is an application, before the deadline it should accept all the application, लेकिन उसमें से मैं जॉब कितने लोग को देने वाला हूँ? 100 लोग को, तो मेरा फॉर लूप हो जाएगा। मतलब अगर आपको पता है कितनी बार ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो फॉर लूप होता है। जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल आपकी लैंग्वेज में बात करूं, मुझे टेबल ऑफ 9 नहीं आता है, तो 9 के टेबल को आप अगर 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ये क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लूप। मतलब 10 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई करो विद डिफरेंट वैल्यूज, आपको आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? आएगा कि नहीं आएगा? हेलो? यस सर। Yes, तो sir. आपने Yes, क्या sir. किया? 9 के साथ में लूप किया, पहले 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, वही चीज बार बार आप करते रहे हो, तो दिस दैट बिकम्स अ लूप। सो व्हेन यू नो वेल इन एडवांस कि आपको ये कितनी बार स्टेटमेंट रिपीट करना है, तो वो फॉर लूप होता है। और जब आपको नहीं पता है कि ये मुझे कितनी बार रिपीट करना है, तो वो वाइल होता है, या तो डू वाइल हो जाएगा। But for me, we know well in advance how many times this is going to be repeated. While me, we don't know how many times it is going to be repeated. Now you'll have taken the admission in our college. So then, by when your third year will get clear? In how many years? 3 years, 4 years, 5 years? कितना time लगेगा? 3 years. ये देखो, रिजल्ट खुद ही बनाने वाले हो क्या बेटा? पास हो गए तो 3 years ना, केटी लग गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? टाइम बढ़ जाएगा सर।
टाइम बढ़ जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? यू विल हैव टू स्टडी एंड सी टू इट दैट यू शुड नॉट गेट केटी। टाइम बढ़ जाएगा। सो वो वाइल में है, फॉर में नहीं है। अगर मैंने एग्जाम का टाइम टेबल दिया तो आप कितने पेपर लिखने जाओगे? कितने पेपर लिखने जाओगे? 6 पेपर की 7 पेपर? 5 सर। 5 लिखने जाएंगे। ये फॉर है कि हमको कितने दिन एग्जाम देने जाना है, राइट? दैट इज फॉर लूप, राइट? यस सर। यस और नो? आज का जो टाइम टेबल है उसमें कितने लेक्चर हैं, कितने लेक्चर हैं, वो फॉर लूप है, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? समझ रहे हैं ना? हेलो? यस सर। यस सर, समझ रहे। जैसे कि वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि चलो आप एक टेबल प्रिंट करो, टेबल, एक नंबर ले लो, उसका टेबल प्रिंट करो। अभी हम लिखते हैं एक प्रोग्राम टेबल का प्रोग्राम। आप नंबर बताना, हम लोग टेबल लिख देंगे। और फॉर लूप में क्या होता है दैट आई विल टेल यू। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स अंडर फॉर लूप। पहले टेबल की बात हो रही, वॉइड मेन, ये सबको पता है। फिर इंटीजर एक नंबर लिया जाएगा और एक वेरिएबल आएगा आई, और आई क्या करेगा, वो 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यू लेगा और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसका टेबल आ जाएगा। तो CLR SCR ये लिया मैंने यूजर को बोला गिव मी वन नंबर, printf enter an integer. I got the integer. After getting this integer, scanf %d ampersand नंबर मिल गया मुझे। अब ये नंबर को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना है, फिर 3 से करना है। फॉर लूप नहीं लगाएंगे। अगर मान लो आप ऐसे ही आंसर को डिस्प्ले करोगे, मान लो, और तो आप बोलोगे सर n इंटू 1, फिर n इंटू 2, n इंटू 3, 10 टाइम्स आपको प्रिंटफ करना पड़ेगा। n इंटू 1 कितना होता है? तो अगर आपको चाहिए कि नहीं ये एक ही स्टेटमेंट 10 बार मुझे प्रिंट करना है, तो आपको एक बार फॉर लूप लिखो, फॉर i इज इक्वल टू 1। लूप कहाँ से स्टार्ट करना है? कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। तो फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट आते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ तक चलना है, फ्रॉम 1 टिल व्हाट, एंड देन i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट बाय हाउ मच। तो मेरा 3 स्टेटमेंट होता है, इनिशियलाइजेशन, चेकिंग कंडीशन दैट इज द सेकेंड वन, एंड अपडेट। आपको फिर i कैसे प्लस प्लस करोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस कैसे चेंज करना है। एंड आई एम राइटिंग हियर printf %d ampersand नंबर, जो भी नंबर दोगे उसको मैं n इंटू आई। तो ये देखो n, ये जो printf कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा, 1 से 10 तक चलेगा। पहले जब 1 होगा i, तो नंबर इंटू 1, नंबर इंटू 2, नंबर इंटू 3। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने गेट ch किया, एंड देन आई विल सेव द प्रोग्राम table.c, table.c। कंपाइल किया, सक्सेस। ये बोलते हैं नंबर दे दो सर। तो ये देखो, ये तो टेबल आ गया। चलेगा टेबल स्टूडेंट्स? ये टेबल ही तो है 9 का, राइट? हेलो? यस सर। लेकिन क्या होना चाहिए था? ब्रेक। ब्रेक नहीं, न्यू लाइन होना चाहिए था, राइट? आप देखो, मैंने 9 लिखा, ये सही है अभी? यस सर। तो एक्चुअली 10 बार प्रिंट हुआ है, लेकिन आपने एक ही प्रिंट को 10 बार कॉल किया है। प्रिंट टैब पहले 9 इंटू 1 करने आता है, फिर 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो मतलब ये लूप हो गया। प्रिंट टैब को आपने कितनी बार बुलाया स्टूडेंट्स? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। तो आपको ये लूप के अंदर लिखना अच्छा रहेगा कि मैं लूप हटा दूं और 10 बार आप प्रिंट टैब लिखोगे, क्या अच्छा रहेगा? लूप में सर। मतलब मैं इसको फॉर को ब्लॉक कर दिया, फॉर को हटा दिया, देन विल यू एबल टू राइट प्रिंट 10 वैल्यूज? नो, राइट? नहीं प्रिंट होएगा। होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो आप ध्यान दो कि फॉर के पास 3 स्टेटमेंट होते हैं कि इनिशियलाइजेशन, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा होता है कंडीशन का चेकिंग, कहाँ तक चलना है,
और तीसरा होता है कैसे स्टेप में चलना है, 1 के इंक्रीज में चलना है, 2 का इंक्रीज चलना है या डिक्रीज करना है, क्या करना है. सो आई रोट माई वन प्रोग्राम वेर आई एम स्टार्टिंग विथ. सो अगर मैं और अच्छा प्रोग्राम लिखूं इसी को, तो आई एम राइटिंग राइट नाउ, जस्ट हैव अ लुक, %d 9 into 1 is equal to 9. 9 into 1 is equal to 9. तो देखो मैंने कैसे लिखा, 9 into, तो पहला %d n को मिलेगा, n से जाएगा, सेकेंड %d i होगा, थर्ड %d n into i होगा. तो पहला जब 9 है तो n है, सॉरी पहला % n, सेकेंड % i, थर्ड % n into i. अब हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं, जरा आप देखो स्टूडेंट्स, ये अच्छा है कि पहले वाला अच्छा था? ये ये वाला सर। अच्छा है। हाँ, तो आपने तीन % लगाए हैं आपने, पहला n नंबर के लिए, दूसरा i के लिए, तीसरा उसके n into i के लिए, राइट? यस और नो? यस सर। सर वो बस नहीं लेसन समझा क्यों लगा? क्या? सर, i प्लस प्लस। हाँ, पहला वैल्यू देखो, अभी यहाँ पे समझ जाओ, i पहले 1 है, हम चेक करते हैं कैसे चलेगा. i 1 है, इज 1 इज लेस देन 10, यस सर। तो फिर बोलता है पहले जाके प्रिंट करो, पहले 9 प्रिंट करो, फिर 1 प्रिंट करो, फिर 9 into 1 प्रिंट करो. ये प्रिंट होने के बाद में इट विल कम बैक, इधर ही आएगा. i कितना हो जाएगा अब? i आपने 1 स्टार्ट किया था, अब i कितना होगा? 2। 2. इज 2 इज लेस देन 10? यस सर। बोलता है चलो फिर से जाके प्रिंट करो, फिर अब क्या होगा? 9 9 इज 9, i इज 2 एंड देन 9 into 2, 18 प्रिंट करेगा. इट विल कम बैक हियर, फिर i को कितना करेगा वो? 3। 3. इज 3 इज लेस देन 10? यस। फिर से बोलता है फिर से चलो प्रिंट करो, राइट स्टूडेंट्स? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, मेरे को क्या पूछना था, ये i प्लस प्लस हमने क्यों लिखा है सर? अरे वट एवर इज द वैल्यू ऑफ i, इट विल इंक्रीज बाई 1. अच्छा। तो फर्स्ट i 1 था तो 2 हो गया, बाद में 2 है तो 3, 3 है तो 4, इट विल ऑलवेज इंक्रीमेंट बाई 1. ओके सर। ठीक है. अगर जो बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए दूसरा मेथड, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, i इज इक्वल टू i प्लस 1 भी कर सकते हैं, राइट? ये भी मैंने बताया था. और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो दे कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। बाकी बच्चे प्लीज टॉक इन बिटवीन, आई विल बी मोर हैप्पी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। समझ Yes, रहा है. sir. अभी एक प्रोग्राम बात हुई है फैक्टोरियल की, हमारा प्रैक्टिकल है फैक्टोरियल. मैंने फॉर लूप पर्पजली लिया है क्योंकि मुझे 2 प्रोग्राम खत्म करना है. फैक्टोरियल, अगर आपके पास एक नंबर है 5 और 5 फैक्टोरियल होता है 120, राइट? ये आंसर आता है, आपने सुना होगा. और ये कैसे आता है कि जो भी नंबर है तो 1 से लेके वो नंबर तक सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर होता है वो उसका फैक्टोरियल होता है. लाइक 1 into 2, 2 into 3 6, 6 into 4 is 24, 24 5 are 120, राइट? यस सर। वैसे अगर आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है तो आपको 720 आएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 करेंगे तो ये 720 हो जाएगा. सो कैन यू राइट डाउन द सेम प्रोग्राम? फैक्टोरियल की बात हम कर सकते हैं क्या अभी? व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 0? फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर द फैक्टोरियल. ओके, फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल के लिए करना व्हाट इज क्या है फैक्टोरियल सर? ऑफ 100? सर फैक्टोरियल के लिए आप जरा ध्यान दो, हम लोग ध्यान क्या देंगे आप लोग? लेट मी गो अहेड विद, मैंने लिखा void मेन और मैं कह रहा हूं कि आप मुझे एक नंबर दे दो. मैंने नंबर लिया और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा. लूप ले लिया और फैक्ट करके एक आंसर होगा, फैक्ट करके एक आंसर होगा. और फैक्ट में आज सुबह बात हो रही थी कि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये गार्बेज ले लेगा.
राइट स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। तो Yes, sir. गार्बेज अगर गार्बेज लेगा तो गार्बेज इनटू फैक्ट इज इक्वल टू 0 करेंगे तो सर आंसर ही 0 आएगा। तो फिर सर क्या करें? 1 करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट करना रहेगा तो 1 करना रहेगा, और समेशन जब करते हैं तो 0 करना रहेगा। ओके, वेरी तो क्लियर स्क्रीन। नहीं तो अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे स्टूडेंट्स तो फैक्टोरियल इंटू गार्बेज इंटू 1 इज गार्बेज, गार्बेज इंटू 2 इज डबल गार्बेज, गार्बेज इंटू 3 फिर नया गार्बेज, राइट? ठीक में पॉइंट? Yes, sir. यस सर। आप जरा, मैंने बोला आप नंबर दे दो, एंटर एन इंटीजर, मैंने आपसे नंबर ले लिया और स्कैनएफ। ये प्रोग्राम सब लिखने के लिए कितना टाइम लगता है? हार्डली अ मिनट्स, बस टाइपिंग टाइम। इंटीजर नंबर मैंने ले लिया। अब मैंने फॉर लूप को बुलाया, मैंने बोला भाई तू 1 से लेके जो भी नंबर है वहां तक, अगर वो 5 है तो 1 से 5 तक को मल्टीप्लाई कर, 6 है तो 6 तक मल्टीप्लाई करना, 7 है तो 7 तक करना। तो 1 से स्टार्ट करो और जितना नंबर है वहां तक आपको सब मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर? वो कह रहा है कि सर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई कर दो। मतलब सर समझा नहीं, समझ गए? अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ऐसा ट्रेसिंग में बताऊंगा तो ज्यादा समझेगा। मैं ट्रेस करता हूं प्रोग्राम को, आपको बहुत अच्छे समझेगा, फिर ऐसे नहीं समझेगा। ट्रेसिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। मैंने फॉर लूप लिखा है i इज इक्वल टू 1 और n सपोज मेरा 5 है, और मैंने लिखा है i इज लेस और इज इक्वल टू n मतलब 5 i प्लस प्लस। ठीक है, मेरा नंबर क्या है? मेरा फैक्ट, एक सेकेंड, मेरा i क्या है? फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i। सर फैक्टोरियल अभी क्या है आपके पास में? 1 है, राइट? नंबर कितना है? 5, राइट? नंबर कितना है तुम्हारा? हेलो? 5। 5 5, sir. i कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, राइट? i कहां से स्टार्ट हो रहा है? यस सर यस सर। 1 से। फैक्टोरियल कितना है अभी? 1 इंटू 1, आंसर आया 1, चलेगा? यस सर। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम? i कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम? i विल बी 2, i विल बी 2। इज 2 इज लेस और इक्वल टू 5? इज 2 इज लेस और इक्वल टू 5? यस सर। लेस। yes, no, नो। less. So Yes, then sir. Less. then what is your factorial right now? अभी मेरा फैक्टोरियल है 1 और i का वैल्यू है 2, तो फैक्टोरियल हो गया 2, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. नेक्स्ट टाइम आपका i हो जाएगा 3, इज 3 इज लेस और इज इक्वल टू 5? Less than Yes, 5. sir. यस। सो करेंट फैक्टोरियल राइट नाउ, अभी जो मेरा फैक्टोरियल है वो है 2 और i है 3, तो आंसर आया 6, राइट? फैक्टोरियल अभी कितना है? 6। नेक्स्ट टाइम आपका i कितना हो जाएगा? 4, राइट? और फैक्टोरियल अभी कितना है? 6 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टाइम अब i हो जाएगा 5, बिकॉज 5 इज लेस और इज इक्वल टू 5। तो अभी मेरा जो फैक्टोरियल है वो है 24 इंटू 5, आंसर कितना हुआ? 120। 120. नेक्स्ट टाइम i होगा 6, बट इज 6 इज लेस और इज इक्वल टू 5? No, sir. नो। No. बस बोले रुक जाओ, वेट, जो आंसर है वो डिस्प्ले कर दो। तो ये क्या हुआ? लूप स्टूडेंट्स। अगर मुझे अब 6 फैक्टोरियल करना है तो आगे चलेगा फिर वो, राइट? 6 करना है तो ये 120 होगा, इंटू 6 करेगा 720 आ जाएगा, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? फिर ये 7 हो जाएगा, 7 इज लेस और इक्वल टू 6? नहीं सर, 7 is not less or so it will stop at 720, right? समझ रहे हैं प्रोग्राम कैसे चलेगा? फॉर लूप आपको Settled 1 से लिख, हाँ, हेलो हेलो, Yes, sir. क्या हो रहा है? लूप हो रहा है, राइट? बार बार आप पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा मल्टीप्लाई होते रहता है, राइट? So let us go for the program now.
मेरा प्रोग्राम किधर है? अरे बाबा, मेरा प्रोग्राम किधर गया? हाँ, ये है। हाँ, तो मैंने फैक्टोरियल किया है, मेरा आंसर आ गया है और मैं प्रिंटफ करके आंसर डिस्प्ले कर रहा हूँ। प्रिंटफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d, फैक्ट। आंसर फैक्ट को पता है और गेट ch किया और मैंने प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। प्रोग्राम इज fact.c। तो रन कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, रन। It's saying give me the number. I said 5. It is saying factorial is 120. करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. अब मैं रन कर रहा हूँ, मैंने बोला फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल बताओ, ये बोल रहा है 720। करेक्ट है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। और अगर 7 का फैक्टोरियल देखना है तो ये नंबर जो है 6 का फैक्टोरियल इंटू 7 करना पड़ेगा, वो 7 का फैक्टोरियल होगा। 720 इंटू 7, 720 इंटू 7 इज 5040। 8 का फैक्टोरियल देखना है, 8 का तो वो हो जाएगा, देखो क्या हो गया बाबा, 8 का फैक्टोरियल ऐसा क्यों हो गया भाई स्टूडेंट्स? लिमिट क्रॉस कर गया ना। लिमिट क्रॉस कर गया, लिमिट क्रॉस कर गया, बच्चा बिगड़ गया, राइट? तो अभी क्या करना पड़ेगा भाई? लिमिट बढ़ाओ सर। लिमिट बढ़ाओ। किसको Wrong लिमिट limit. बढ़ाने की जरूरत है? सबको नहीं Wrong बढ़ाने limit. की जरूरत, सिर्फ फैक्ट हमें फैक्टोरियल की लिमिट बढ़ाने की जरूरत है, राइट? आप समझ रहे हो? Yes. यस सर। और उसको फिर मैं वहां से निकाल दूंगा, फिर यहां से इंटीजर से हटा के उसको मैंने बड़ा घर दे दिया है। छोटा घर में उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था तो उसको मैंने बड़ा घर दे दिया है। और फिर यहाँ पे प्रिंट को मुझे बताना पड़ेगा कि बाबा नाउ यू हैव टू प्रिंट एलडी, राइट? इज दैट यस क्लियर? सर। चलो अब रन करते हैं हम। और 8 का फैक्टोरियल आप पूछो, ये हो रहा था 40,000 हो रहा था, मतलब बढ़ गया था नंबर 40,320 स्टूडेंट्स, इसके लिए लिमिट के बाहर गया था तुम्हारा नंबर। चलो एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे, अच्छे से देखते हैं। पहले तो मैं 2-3 आउटपुट इस पे दिखाता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ %d, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %ld, मतलब फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो भी आपने दिया है। मैंने बोला फैक्टोरियल 6, तो कह रहा है फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। आपको कैसे डिस्प्ले करना है? फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720 स्टूडेंट्स। हेलो? यस Yes, सर। sir. या फिर आप ऐसे डिस्प्ले करो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप देखना आंसर कैसे आएगा। रन 6 फैक्टोरियल, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। और अच्छा देखना है ये प्रोग्राम चल कैसे रहा था, वो भी हम आपको दिखा देते हैं सो दैट यू विल गेट अ बेटर पिक्चर। लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट। सर प्रिंटफ, बोलिए सर। सर एक छोटा सा डाउट था सर। तो बोलो सर वो यहाँ पे अपन ने लिखे कि फॉर लूप के बाजू में क्या लिखे हुआ। कि आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। तो जो है अपने को 5 से कम नंबर का डालना चाहिए, डालेंगे तो आएगा क्या सर? नहीं, लेस देन इक्वल टू n मतलब जो भी n है वहां तक चलेगा। वो 5 डाल रहा है तो 5 तक चलेगा, 6 किया तो 6 तक चलेगा, ओके राइट? लेस देन कर देंगे तो फिर वो एक पीछे चलेगा, ठीक है? सर। ओके सर। Sir, I had a doubt. बोलो। Hello, can you hear me? I can hear you. Just wait. Let me complete this. एक 2 मिनट टाइम Okay, दो। sir. Okay, sir. मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, you'll get an idea क्या हो रहा है। printf, just to explain you my flow of the program, fact किया मैंने, fact, then I, then fact is equal to fact into I, n,
आपको एक पूरा फ्लो समझेगा प्रोग्राम का, डिसेक्शन, फैक्ट %d, and you have %d, no, fact is %ld हो गया है अभी, ld, d, and then %ld, comma, fact, comma I, comma, fact into I, right? इसको ब्लॉक किया, चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ब्रैकेट नहीं दिया, मैं 5 फैक्टोरियल ले रहा हूँ। ओह, प्रॉब्लमेटिक हो गया, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स प्रोग्राम समझ रहे हैं क्या हो रहा है तुम्हारा? जो मैंने आपको पेन से दिखाया था बोर्ड पे, नाउ यू कैन सी द सेम ब्रेकअप, राइट? हेलो, Yes, sir. पहले फैक्टोरियल 1 था, 1 into 1 is 1, नेक्स्ट टाइम I became 2, but the factorial was 1, so 1 into 2 कितना हो गया? 2, right? Factorial is 2, I is 3, now 3 into 2 6 हो गया, factorial is 6, I is 4, 24 हो गया, and so on, right? हेलो, एक्चुअली ये बहुत Yes. कंफ्यूजिंग हो गया है। मैं कंफ्यूजन ही हटा देता हूँ, मैं छोटा सा रखता हूँ, देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन, आई विल जस्ट, देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन नाउ। अभी कंफ्यूजन दूर हो गया सब? हेलो, आपको करना क्या है, जो नंबर आएगा 6 या 5 जो भी रहेगा, so you have to start multiplying. Is I is 1? Yes. What is factorial? Current factorial is 1. 1 into 1 is 1. Next time number will be 2. So, but what is current factorial? Is 1. 1 into 2 is 2 हो जाएगा factorial. I number will be 3. मैं तुम लोग से बात करता हूँ, सुनो मेरी बात। चलो, suppose I'll take the number as 6. Factorial अभी कितना है? 1, right? हेलो, Yes, sir.
नंबर और आई कितना है अभी? व्हाट इज आई राइट नाउ? इनिशियल आई, फर्स्ट आई कितना है तुम्हारा? 1. Is 1 is less or is 1. equal to is 1 is less or is equal to 6? Yes, sir. Then Less. you multiply. What you have to multiply? Fact into I. What is fact? 1. I 1. 1 into 1. 1. 1. So right now keep in your mind fact is 1 and I will be 2 now. I will be 2 for the next iteration. I will be 2 is 2 is less or is equal to 6. Is 2 is less or is Less. equal to 6. What was your previous factorial? What was your previous factorial? 1. 1. 1 into 2. 2. 2. Keep in your mind factorial is 2 now. Factorial is 2 now. That you have to keep it in mind. I will become 3. Is 3 is less or is equal to 6? Less. Yes, sir. Less. Now, so you multiply. Then factorial was 2 into 3. Factorial has become 6 now. Is that clear? Yes, sir. Yes. So factorial value is 6. I will become 4. I will become 4. Is 4 is less or is equal to 6? Yes, Yes. So then previous value was 6 into 4, 24. So factorial has become 24 and I will become 5. Is 5 is less or is equal to 6? Yes, sir. So next time it will multiply 24 into 5. Factorial has become 120. Factorial has become 120 and I will become 6. Is 6 is less or is equal to 6? Yes, sir. Then multiply Yes, sir. 120 into 6. 120 into 6 factorial will be 720. And I will become 7. Is 7 is less or is equal to 6? No, sir. Then it says stop. Bas ho gaya, bahut ho gaya, right? So Yes, sir. I'll show you the output once again and then whatever doubts, queries you are having, welcome. So the answer is 720 students. Yes, somebody is calling me saying, sir, कुछ पूछ रहे थे, कुछ बोलो. Yes, sir. I just wanted to ask for the for loop, I is equal to 1. Is that a default value or can we like change the value as per Yes, as yes, yes, you can change the value. चलो हम Okay. छोटे प्रोग्राम करते हैं. You will get an idea. Suppose she is asking, sir, is it always 1? No, I said no. If I wanted to add 11 plus 12 plus 13 plus up to 20, what is the summation of this? This is kind of a for loop करना पड़ेगा. आपको 10 values add करना है, but you have to start from 1 and you have to end up at 20, right? Right, students? Hello? Yes, sir. Yes. So then how will you write this program? Let me write this program. तो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ. New and void main और मेरा इंटीजर एक आई चाहिए और मुझे एक सम चाहिए जिसमें वैल्यू 0 होगा, क्लियर स्क्रीन होगा और यूजर से मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे कुछ मत दो, मुझे सब पता है अभी, राइट, कि मुझे कहाँ से क्या करना है. 11 से 20 तक ऐड करना है. तो मैंने बोला आई विल बिगिन फ्रॉम 11. आई विल बी लेस और इक्वल टू 20 तक चलना है और विथ अ जंप ऑफ 1, राइट. एक एक का इंक्रीज होएगा, राइट स्टूडेंट्स. हेलो. I will Yes, sir. begin from 11. It will go up to 20. First 11, then 12, then 13, then 14, up to 20. And then each I, every value of I, which will begin from 10, 11, I will add it into sum. Done. हो गया मेरा प्रोग्राम हो गया. सर मैं काम करता हूँ, तुम लोग से पूछता हूँ पहले 1 से 10 का ऐड कितना होता है, फिर हम इसको चेंज कर देंगे. What is the summation of 1 to 10? 55, right? Right, students? Yes, sir. हेलो. तो पहले हम 1 से 10 चेक कर लेंगे. अगर वो राइट है तो फिर ये भी राइट रहेगा, फिर हम तुरंत चेंज करेंगे. चलो मैंने चेंज किया. इसको सेव करो. सेव एज sum.c. रन करते हैं हम लोग. रन किया. आंसर सर, आंसर किधर है? 55. कैन यू सी द आंसर? Yes. हेलो.
यस। नाउ अगर वो 11 की बात चल रही थी तो पहले मुझे छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। 11 प्लस 12 कितना होता है स्टूडेंट्स? 11 प्लस 12 कितना होता है? 23। 23. तो मैं 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 12 में एंड अप कर दूंगा। दैट मींस आई वांटेड टू ऐड जस्ट 11 एंड 12 वैल्यू ऑफ i। लेट अस सी मेरा प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है। इज इट 23? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं 13 तक लेके चलूंगा तो कितना होगा? 24. 36. 36। 36. मतलब 11 प्लस 12 प्लस 13 तीन वैल्यू ऐड करना है, राइट? यस सर। तो जस्ट चेक मेरा आंसर क्या है। इज इट 36? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अगर इफ आई कैन चेक ऑल दिस, इतना सारा Hello, sir. Hello. ඉඩමක් ගන්න හොඳ ගෙයක් හදාගන්න කතා කරන්න. हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो कैन वी ट्रस्ट अवर प्रोग्राम जो मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले? यस सर। लेट अस सी द प्रोग्राम नाउ वंस अगेन। I was doing 11 से 20. Can we trust 11 से 20? Right? 11 से 13 मैंने देखा था। 11 से 20 now I'll run. And you can see the output 155. ट्रस्ट करना है कि चेक करना है? हेलो ट्रस्ट। Trust. हाँ, तो जिसने मुझे पूछा था सर इज इट द डिफॉल्ट वैल्यू 1? नो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 101, you can go up to 200. That's not a problem. From anywhere you can start and anywhere you can wind up. That is not a problem, right? यस सर। So you can see the output. If you are adding 101 to 200, it is giving you 15050. If you are adding 1 to 100, you know what is the total of 1 to 100. You can just straightforward, you can apply your formula n into n plus 1 by 200 into 101 plus by 2. So you know your answer as well. 5050, right? पता है ना सबको? Students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. यस सर। सबको पता होना चाहिए। Now suppose अगर आप इस पे ही अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, where is my board, किधर गया? अगर आपको कोई पूछता है सर, क्या बाहर के लोग मुझे इतना फोन करते हैं? If suppose I wanted to find out
even numbers, okay, up to 10. तो कैसे हम लोग प्रोग्राम को चेंज कैसे करेंगे सर? देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टू 10 करना है तो आई विल गो अप टू 10 and I will not write I plus plus now. I will write I is equal to I plus 2. Right students? मैं 2 से स्टार्ट किया, 10 तक जाऊंगा और with a jump of 2. So I will be 2 first, 2 will be added to sum. Next time I will be 4 which is less than 10, 4 will be added. चलो मैं यहाँ पे अगर मैंने 6 तक का किया हम लोग चेक करते हैं. I is 2 is less or equal to 6? Yes, no, जल्दी से बोलो. Yes, sir. So add that 2 to sum. Sum is 0. So what is your sum right now? 2 हो जाएगा, right? Yes, sir. Next time I कितना होगा? 4 होगा. Is 4 is less or equal to 6? Yes, sir. So then add that 4 with the previous sum. What was your previous sum? 2. 2 plus 4. 6. So sum is 6 now. 6. And new value of I will also be 6. New value of I will also be 6, right? Yes, sir. Yes, sir. What is that 6 is less or equal to 6? Is the condition is satisfied? Yes, sir. Then previous sum was 6 plus this new 6. I is 6. Then sum has become 12 now. Yes. जरा चेक करते हैं हम लोग हमारा 12 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जस्ट चेक करो. Is it 12? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने 6 तक चेक किया जस्ट वेरिफिकेशन के लिए. अगर हम 10 तक जा रहे हैं तो कितना आंसर आएगा? 12 plus 8 20, 20 plus 10 30 होना चाहिए, राइट? 30 होना चाहिए. चलो चेक करो. इज इट 30? Yes, sir. अब कोई बोलेगा सर मुझे ऑड नंबर लिखना है 1 से 10 का, तो क्या करूं सर? I equal to 1. I will be 1. So first 1 will be added. Next I will automatically will take 3, right? Yes, no? Yes, sir. So 3 will be added. Then I will be 5, 7, 9. और जब I 11 होएगा, but 11 will not be less or equal to 10, right? Yes, sir. Yes, sir. Then it will add 1, 3, 5, 7, 9. 11 will not be added. If you want to check, you just tell me the answer. आंसर मुझे बताओ कितना होगा आंसर? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. बोलो जल्दी से. वेरी पुअर मैथ्स है. 25. 25. 25. 25. 25. जिसको नहीं आता था वो ऐसा भी कर सकता था एक्स्ट्रा ब्रेन वाला कि 1 to 10 होता है 55. इवन नंबर का टोटल आया था मेरा 30. तो और डिफरेंस कितना बचा? Sum of all the numbers from 1 to 10 was 55. Sum of even number from 1 to 10 was 30. So 55 minus 30 is balance is odd number, right? 25. Yes, sir. 25. Yes. 25. Just check whether we got the same answer. 25, right? Is it correct, students? Yes, sir. Yes, sir. Now somebody may ask you, sir, what is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square? ये कैसा होगा up to 10 square suppose? 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. Square of numbers from 1 to 10. कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, ये मैंने किया into I, number into number. तो पहले देखो I1 है उसका स्क्वायर होके सम में ऐड हुआ, फिर 2 आएगा उसका स्क्वायर होके सम में 3 स्क्वायर सम, राइट? So all the squares will be added with sum. Is that clear, students? Because we know that the number into number is always just its square. Hello? Hello? Yes, sir. तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं चलो पहले छोटा नंबर तक चेक करते हैं, मे बी 5 तक चेक करते हैं. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सम अप करके मुझे बताओ, देन आई विल रन दिस प्रोग्राम. 1 square is 1, 2 square is 4, so 1 plus 4 is 5, 3 square is 9, 9 plus 5 is 14, 14 plus 16 is 30, 30 plus 25, 55 हो रहा है, right students? Yes, sir. चलो रन करते हैं हम लोग और चेक करते हैं आंसर बराबर हो रहा है 55. Yes, 55. Hello. Correct?
बाबू का क्या? Yes, sir. और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें कितना ऐड हो जाएगा? ठीक है ना 36, राइट? दावा? तो 55 प्लस 36 91. 91। चेक करो बाबा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीला भी दे। ये सब चेक होता है छोटा छोटा. Because it should not happen, you wrote ठीक for है। a bigger number and you yourself cannot verify कि my program is right or wrong. Then it's of no use writing the program. You should have a control. हम जो बेबी को बर्थ दे रहे हैं उसका कैसा कंट्रोल करना है, कैसा चेक करना है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको खुद टेस्टिंग करने आना चाहिए. राइट? वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, एक छोटा छोटा बेबी प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, हमको खुद चेकिंग करने आना चाहिए, टेस्टिंग आना चाहिए, our own programs. So now if it is working up to 6, then I should trust now because I've tested for 4, 5, 6. तो अगर आप कोई 100 भी बोलेगा तो भी आपको रिलैक्स हो जाओ कि यस, कुछ नहीं है सर, मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, जिस मैंने लिमिट चेंज कर दिया है बस. 385 होएगा. आप ट्रस्ट करो, नहीं तो फिर वेरीफाई करो. बट आई वेरीफाइड विद द स्मॉलर नंबर, राइट स्टूडेंट्स? ओके, हेलो. Yes, sir. अब यही प्रोग्राम को कोई बोलेगा सर 1 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक करो या 100 स्क्वायर तक करो, तो आपको सिर्फ रेंज बदल देना है बस, और कुछ नहीं करना है. और कोई बोलेगा नहीं सर 11 स्क्वायर से चालू करो या 21 स्क्वायर से चालू करो, 21 स्क्वायर से लेके 21 से 30 तक चलो बस. अभी सर इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, इसके आगे तो नहीं आता है सर मुझे, राइट? तो पहले एक को ही चेक कर लो. चलो सिर्फ 21 का चेक करते हैं हम लोग. 21 का स्क्वायर, स्टार्ट फ्रॉम 21, एंड अप एट 21. लेट अस सी आर वी गेटिंग द करेक्ट आंसर. करेक्ट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, Now, sir. अब 22 का स्क्वायर आपको 484 पता है. 484 अगर 22 अगर इसमें 484 प्लस 441 कितना होगा? 441 प्लस 484. सर वेरी पुअर मैथ्स है हमारा. 925. Let us check. Let us check. $925, correct? Yes, sir. Yes. So now this program I have written for squaring numbers, squaring from any range to any range. You decide the number. अगर मैं program में लिखूंगा write a program to find out sum of square from 61 to 80, तो आप बोलोगे सर ये प्रोग्राम तो आपने कराया ही नहीं था. Can you say like this? No, sir. आपको क्या करना है? आपको समझ जाना चाहिए तुरंत सर ने क्या पूछा इनडायरेक्टली, राइट? Yes, sir. यस. नाउ कोई पूछ रहा है सर आपको कि सर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स मुझे चाहिए, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम एनी रेंज टू एनी रेंज. 20 से मान लो मैंने स्क्वायर चालू किया, 20 से स्टार्ट किया, 20 से 50 के बीच में जितना इवन नंबर होएगा 50. ओके, 50 मतलब अभी क्या, i इज इक्वल टू i प्लस 2. तो ये हो रहा है कि नहीं? 20 से 50 के बीच का स्क्वायर आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स? हेलो हेलो. यस सर आएगा. आएगा क्योंकि आई आपने 20 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट टाइम 22 होगा, नेक्स्ट टाइम 24 होगा, एंड सो ऑन, एंड उनका स्क्वायर सब सम अप होता जाएगा, राइट? यस. तो फॉर लूप तो बहुत अच्छा काम का चीज है सर ये तो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा फ्रेंड है सर ये तो फॉर लूप. वही सम वाला स्टेटमेंट को इतना टाइम घुमाता रहेगा, जितना बार जब तक फॉर लूप खत्म नहीं होएगा सम घूमता रहेगा, राइट? क्यों स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे मम्मी तुमको बचपन में घुमाती थी जब टीचर का होमवर्क आता था, मम्मी कैन आई गो डाउन थोड़ा प्ले करके आऊं? नहीं, पहला मुझे सभी सब्जेक्ट का होमवर्क दिखाओ, राइट? पहले ये पूरा हुआ है कि नहीं, दूसरा पूरा हुआ है कि नहीं, तीसरा सबका बताओ. तो सी विल चेक ऑल द सब्जेक्ट्स, देन ओनली सी विल लेट यू टू गो डाउन, राइट? फिर खेलने जा सकते हैं हम.
बचपन में पढ़ाई नहीं करना है, आज भी वही करना है। नीचे जाऊं मम्मी? नहीं। आज का पढ़ाई हुआ क्या? आके कर लूंगा? नहीं, नॉट अलाउड। ऐसा होता था क्या बचपन में स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। यस तो सर। यस सर। मम्मी आपको कैसे काम कराती है? लूप में, राइट? यस सर। जब तक काम पूरा नहीं होगा यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू। तो अब मम्मी भी बेचारी लूप में ही है, मम्मी भी बेचारी लूप में ही है। उसको रोज बेचारी को हाउ लॉन्ग शी हैज टू मेक द डिनर एंड द ब्रेकफास्ट एंड द लंच? कब तक उसको बनाना है? उसका तो फॉर लूप नहीं, उसका तो वाइल लूप है। स्टूडेंट हेलो? मम्मी का लाइफ कैसा है, वाइल लूप में कि फॉर लूप में? डज शी नोज हाउ मेनी टाइम्स शी हैज टू मेक डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट? राइट? नो वन नोज दिस। देखो ये सब कैसा, लाइफ ही पूरा लूप है स्टूडेंट्स। लाइफ इटसेल्फ इज अ लूप। Every day we have to keep on doing our work. It's a while loop, you don't know. Hello? Am I audible? Yes. Yes sir. Yes. We are inside a loop. All of us are inside the loop. We are somewhere in between that loop. We are doing our work, daily work. डेली हम क्या करते हैं? सपोज अगर आपका लाइफ, जैसे कॉलेज में जाना है स्टूडेंट्स, अभी तो नहीं जा रहे हैं, बाद में जब जाना है, या अभी भी एवरी टाइम यू हैव अ टाइम टेबल। डे 1 जब से तुम्हारा बीएससी आईटी शुरू हुआ है, डे 1 फर्स्ट डे, एंड सपोज 3 इयर्स अज्यूम करके चलोगे तो मे बी 1000 डेज तक होएगा। डे 1 से डे 1000 तक में आप लूप में रहोगे। आज का टाइम टेबल क्या है? अच्छा ये रीड करना है, फिर कल वही टाइम टेबल, नेक्स्ट वही टाइम टेबल, नेक्स्ट। तो आप लूप में चलते रहते हैं। एवरी डे द लेक्चर्स व्हिच यू आर अटेंडिंग इज इन अ लूप और विदाउट लूप? हेलो? लूप है, सब लूप है सर, सब लूप है, राइट? सब लूप है, लाइफ ही लूप है। So students, try to connect everything with the real life, then you will find it, yes, it's very easy for you to understand the programming, why we are learning for loop, why we are learning while loop. If you want to repeat the same set of code again and again, you have to write them under a loop. Okay? Is that clear, students? Yes sir. Yes sir. Okay. चलो, आई नो अभी छोटे बच्चे हैं, ये बेचारे सोच रहे हैं सर हमको आज कब तक पढ़ाएंगे, इनके माइंड में दूसरा लूप चल रहा है। ये सर तो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते ही नहीं है सर, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन सर। अगर ये सर बता दे कि कब कितने प्रोग्राम के बाद छोड़ेंगे तो तुम्हारा बीपी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का तो बीपी अप्स एंड डाउन चल रहा है, राइट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या बात किया? No sir. अच्छे, मतलब आपको सर जितना देर लेना है ले लो, नो प्रॉब्लम, राइट? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली मैं जो बोल रहा था वही सच है, राइट? यस। चलो, एक बात नहीं करना है, प्रोग्राम लिखना, एक लास्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रैक्टिकल, जिसमें आई कुड बी एबल टू कंप्लीट दैट सेकंड प्रैक्टिकल वाज चेक whether the given number is a prime number or not. सर ये प्राइम नंबर क्या होता है आज तक समझा ही नहीं। Who can tell me what is a prime number? And is the last prime number is a number who is divisible by its own number and not by any other number. The one which is divisible by 1 and itself is a prime number. उसके अलावा कोई और उसको डिवाइड करेगा तो फिर वो प्राइम नहीं है, राइट? Yes sir. Yes sir. Yes, वो प्राइम नहीं है। The number which are divisible by 1 and itself is a prime, otherwise it is not a prime. तो ये बात को हम अपने C प्रोग्रामिंग को कैसे बताएं फ्रेंड्स? How do you write the same thing in C? क्या करना पड़ेगा? आपको क्या चाहिए सर? नंबर चाहिए, राइट? यस सर। एक माइंड में लेके आओ सर कैसे बताने जा रहे हैं आपको। जैसे मान लो मैंने एक नंबर दिया, बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने एक नंबर दिया, चलो मैंने नंबर दे दिया 12।
अब मुझे नहीं पता है 12 प्राइम है कि नहीं है। अब एक काम करो आप, उसका आधा कितना होता है, 12 का आधा कितना होता है? 6। तो आप 1 से, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 से नहीं, 2 से लेके 6 तक देखो कोई नंबर क्या 12 को डिवाइड कर रहा है क्या? इस 2 इज डिवाइडिंग 12। तो बस जब कोई डिवाइड कर दे तो फिर चुपचाप बैठो एंड बोलो कि ये नंबर जो था ना ये प्राइम नहीं है। फिर से मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने नंबर लिया 13, उसका हाफ कितना हुआ? हाफ 7.4 आता है। हाफ कितना हुआ है 13 का? 6.5। सो यू टेक इट एज राउंड फिगर में ले लो, 6 ले लो, राउंड फिगर ले लो 6, राइट? Yes, sir. Now when I'm taking round figure as 6, then just check from 2 to 6. 1, because 1 divides every number. Check from 2 to 6. From which number this 13 is divisible? Is 13 is divisible by 2? No. No. By 3? No. By 4? No. No. By 5? No. 6? No. बस अब किसी ने नहीं डिवाइड किया तो बोलो बस you are the boss now. You are a prime number. Then 13 is a prime number, right? Yes. I will take number 31. What is the half of 13? 31. Half of 31. 15.5. So 15 से, so 2 to 15 तक चेक करो कौन 31 को डिवाइड करता है? 2 करता है क्या? No. 3? No, sir. कोई नहीं करता है No. ना, 2, 3, No. 4, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है। तो बस बोलो ये प्राइम है। फिर अगर कोई करेगा, जैसे मान लो आपने पहला एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, 24 ले लिया मैंने, हाफ कितना हुआ? 12. 12। 12। तो 10, 2 से 12 तक चेक करो कौन डिवाइड करता है 24 को। इस 24 इज डिविजिबल बाय 2। Yes. 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 बस अब आगे चेक मत करना। इवन आई नो दैट द 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 4, 6, 8, 12, राइट? नो नीड टू चेक। किसी एक ने भी डिवाइड कर दिया, बस बोल दो सर यू आर नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? तो मतलब वहां पे मुझे ब्रेक कर देना है, ब्रेक। चलो अब मेरी ये बात को जो मैंने इतना देर आपको बताया है, आपको ये प्रोग्राम में मैं कन्वर्ट करता हूं। मेरा एक आई चलेगा, 2 से चलेगा, कहां से चलेगा? नंबर के हाफ तक। मैंने एक स्टेटस रखा है। मैथमेटिक्स में कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं, मैथ्स को कुछ प्रूव करना है तो, and I am saying let the number is a prime. 1 means true. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि कोई चीज ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, राइट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes. True is 1, false is 0. So I am saying let the number is 1. Means let the number is prime. That is what is my statement. मैंने बोला कि जो भी नंबर आप दे रहे हैं वो प्राइम है। ये मेरा अजम्पशन है और मैं मेरे अजम्पशन को चेक करूंगा। सो आई गॉट द नंबर जस्ट नाउ विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ और मैं फॉर लूप से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 से स्टार्ट किया बिकॉज 1 से नहीं करना है। और कहाँ तक चलूंगा? जो भी नंबर होगा उसका आधा तक। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो भी नंबर है आपका उसका हाफ तक चलेंगे हम लोग। और अगर कोई पूछ रहा है सर 9 प्राइम है कि नहीं, तो 9 का हाफ होता है 4। चेक करो 2 डिवाइड करता है क्या, 3 डिवाइड करता है कि? यस, 3 डिवाइड कर दिया। फिर हम बोल देंगे प्राइम नहीं है, राइट? मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरा नंबर को मैं जब आई मतलब 2 या 3 या 4 या 5 is the remainder when my n is getting divided by any of the I running from 2 to half of n, is the remainder is 0. I am comparing. When I am dividing my number by I can take the value either 2, 3, 4, 5. It depends क्या नंबर है और उसका आधा तक चलेगा, right? Is it clear, students? Yes, sir. Like for 31 के एग्जाम्पल में I 2 से स्टार्ट होगा और 15 तक चलेगा। So is 31 is divisible by 2? No. Is it 3? No. 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। लेकिन 24 का जब एग्जाम्पल लिया था, is 24 is divisible by 2? Yes. Then you say sir status whatever you said is wrong. ये तो false हो गया मेरा स्टेटमेंट।
आई सेड इनिशियली कि स्टेटस 0 है, सॉरी 1 है, मतलब प्राइम है, लेकिन ये तो डिविजिबल हो गया, तो मतलब अब ये प्राइम नहीं है, राइट? आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट। और दूसरा क्या कर दूंगा, मैं ब्रेक कर दूंगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नो नीड टू चेक वेदर 3 ऑल्सो डिवाइड्स 4 ऑल्सो डिवाइड्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स, मेरा काम खत्म। फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेक पढ़ा सर, ये ब्रेक हमने स्विच केस में देखा था स्टूडेंट्स, राइट? अब मैं मेरे स्टेटस को चेक करता हूं, भाई स्टेटस क्या है, इज इट 1? स्टेटस 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 इज इट 1? If it is 1, then what was your statement? Your statement was %d is prime. That number is prime. 45, whatever, 31 is prime. But अगर आपका status 0 है, status is 0, double equal to 0, status अगर 0 है, तो आपने जो बोला था वो गलत हो गया. I will say %d is not prime. % is not prime, right students? Hello? Yes sir. Yes sir. आप ये चेक, इसमें कितने लोग को समझा? पहला देखो, पहली लाइन सबको क्लियर है, इंटीजर वाला, राइट? इंटीजर, ये लाइन क्लियर है, इज दैट क्लियर? Yes sir. दूसरा लाइन सबको क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, चौथा भी क्लियर है, राइट? पांचवा मैंने बोला था कि सर आपको जो भी नंबर मिलेगा 2 से स्टार्ट करके देखो और वो नंबर के हाफ तक देखना है। अगर कोई नंबर पूछता है 50 प्राइम है क्या, तो 2 से 25 तक चेक करके देखो नंबर को, यानी 50 को 2 से डिवाइड करके 3 से 4 से 5 से अप टू 25। अगर डिवाइड होता है तो फिर आप अपना स्टेटमेंट चेंज करो। आपने स्टेटमेंट लिखा है 1, you said let every number what I get is a prime number, then you just change your statement because now your number is divisible, and once it is divisible by any one number, you no need to check with the other number. जैसे 24 का एग्जांपल में 2 डिवाइड कर रहा था, is there was a need to check with 3 also? No, sir. No. Is there is a need to check with 4, 6, 8? सबसे चेक करने का जरूरत है? बात खत्म हो गई यार। एक ने डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, फॉर लूप को बस बोलो ब्रेक, नो नीड टू टेक द फर्दर वैल्यू, ब्रेक। अब अपने स्टेटस को चेक करो, भाई आपका प्रोग्राम का स्टेटस 1 है या 0 है। 1 कब रहेगा? जब कोई आई उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो आपने 11 का एग्जांपल ले लो, 11 का या 7 का ले लो, 7 का हाफ, 7 का हाफ 3। हेलो? Yes sir. So is 7 is divisible by 2? No sir. 7 is divisible by 3? No sir. No, sir. What is your status now? It has become 1 or 0? 1. 1 क्योंकि वो किसी आई ने उसको डिवाइड ही नहीं किया, तो आंसर में क्या बताएगा वो? What is your status? Status is 1. It will say % is prime. It will say 7 is prime, right? Let us run the program. Run the program. सर 7 वाली बात करो आप। देखो ये क्या कह रहा है? It's prime. प्राइम। अब 8 ले लो, 8 का हाफ होगा 4, और 8 तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, बाद में 4 से भी होगा, 2 से डिवाइड होगा, हम बाद में चेक करने का जरूरत ही नहीं है। मैं रन करता हूं, मैं 8 के लिए रन करता हूं, एंड यू चेक, इट इज सेइंग 8 इज नॉट अ प्राइम, राइट? हेलो? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. स्टेटस बदल गया। अब जो भी नंबर आपके दिमाग में हो बता दो। आज में नहीं तो बोलेगा सर मेरे प्रोग्राम में, मेरा कंप्यूटर में वो पॉजिटिव बताता है, नेगेटिव बताता है। आप अभी बोलो सर, जो भी मन में हो बोल दो। 47. चलो 47 बोल रहा है तो 47 ले लो। क्या है पहले आंसर तो बताओ, ये प्राइम है कि नॉन प्राइम है? Prime. पहले हमको पता होना चाहिए, बाद में हम कंप्यूटर को पूछेंगे। नहीं बड़े नंबर पता है तो छोटे नंबर पे ट्राई करो, राइट? 11 हमको पता है प्राइम है, राइट? देखो ये प्राइम बोल रहे हैं। सर 1 डालो ना, 1 डालने से क्या होगा? 1 डालने से क्या होता है? हमने 1 के लिए क्या किया है? 1 इज अ प्राइम, राइट? हेलो? No sir. Yes, sir. हाँ, नहीं हम बताएंगे। हम इसको एक रिजल्ट दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं, बता देते हैं भाई अगर कोई
स्मार्ट बंदा आएगा, नंबर n को 1 रखेगा, तो क्या बताना है सर? आप क्या बताना चाहते हो, बताइए। हाँ, 1 is neither prime nor composite. yes, One is neither prime nor composite. is yes, is neither prime Composite. nor composite. Composite, right? अगर किसी ने मुझे 1 दिया है तो मैं ये बोल लूंगा और बात खत्म करूंगा। तो मैं आपका नंबर लेने के बाद ही उधर ही मैं चेक ही नहीं करूंगा, इतना ऑपरेशन नहीं करूंगा। मैं देखता हूं, ये मैंने लिया, अगर 1 आपने बता दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या मैडम देखा नहीं? राइट? और मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इसका मैं ऑपरेशन खत्म कर देता हूँ। आपने 1 डाला तो ब्रेक मतलब एग्जिट करा देता हूँ, सीधा बाहर ही भेज दूंगा इसको, एग्जिट। अगर आपने 1 दे दिया तो मैसेज देगा आपको वो, चलो रन, आप बोलो 1, मैंने बोल दिया 1। सर 1 तो दिया था मैंने, आंसर नहीं बताया आपने। सर 1 दे रहा हूं मैं आपको, ये क्या बताया इसने? वो में नंबर, हाँ परसेंट डी लिखा होगा शायद, हाँ परसेंट डी इसके लिए। चलो मैं यहाँ पे कॉमा एन कर देता हूँ, कॉमा एन। अब 1 करके देख लेते हैं हम लोग। 1 आउटपुट बराबर है स्टूडेंट्स? Yes. अब बोलो आपको क्या चेक करना है? 1 का भी हो गया, और क्या चेक करना है? वो 47 बोल रहा था, मैंने 47 भी दे दिया, बराबर है? यस सर। और बोलो अभी आप, जिसको भी चेक करना है। 2 sir. 2 इज अ प्राइम, राइट? Yes sir. और क्या चेक करना है? 3 इज अ प्राइम। और चेक करना है 5 इज अ प्राइम। सर डेसिमल डालेंगे तो क्या एरर दिखाएगा? अरे बाबा, प्राइम के में डेसिमल आता है क्या? पहले अच्छे बच्चे हो तो वैसा करो ना। आपका परसेंट डी एक्सेप्ट करेगा, रियल नंबर नहीं एक्सेप्ट करेगा प्रोग्राम, राइट? यस सर। यस सर 101 तो 101 भी चेक कर लो, क्या बता रहा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। कोई 27 कह रहा है तो चलो 27 चेक कर देते हैं, बराबर है? 7. हाँ somebody Yes, saying, sir. बोलो 77। हेलो Yes. 77। चलो मैंने 77 चेक किया, करेक्ट है? Yes sir. So this works for all number. Now you cannot say tomorrow, sir, this was not working for this number or that number, right? So with this, students, I will wind up today's session, right? Because I promised you all that I'll complete prime ka program and then I'll close this. Okay? Yes sir. Yes, sir. Thank you, sir. बोलो। सर जो आपने सुबह प्रोग्राम्स लिया था और अभी भी जो लिया था वो अपलोड कर सकते हो? अरे बाबा, इतना याद, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या सुबह किया है। सर LCM और वो GCD का। ग्रेट। LCM GCD अपलोड टर्बोसी। अभी का भी लूप्स का। सर अभी का वो प्राइम वाला भी दे दो। प्राइम किधर है इसमें? हाँ प्राइम आया किधर? मिल ही नहीं रहा इसको। OP QP QRS प्राइम बैकअप आया, प्राइम C। और कौन सा चाहिए आपको?
एलसीएम जी। हाँ बोलिए सर। सर आपने जब पहले अटेम्प्ट पे 1 का प्राइम में नॉट प्राइम में टेस्ट किया था ना, हाँ तो तब वो कुछ अलग दिखा रहा था, वो किस रीजन से दिखा रहा था? क्योंकि वो कंडीशन मैंने प्रोग्राम में कवर अप नहीं किया था, राइट। वो क्या हो रहा था कि स्टेटस 1 था और 0 नहीं हो रहा था, तो जो भी नंबर के लिए मतलब 0 नहीं होगा तो क्या बताएगा, फिर वो सबको प्राइम बताएगा, राइट। या स्टेटस 0 कब होगा, जब नंबर डिविजिबल होगा, राइट। हाँ हाँ तो वो बाकी जो सब, हाँ इसके लिए वैसा चल रहा था वो। फिर मैंने फिर अभी बिन और आपको क्या चाहिए, एलसीएम जीसीडी। वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट के नीचे हम लोगों ने एग्जिट लिखा, उधर ब्रेक भी लिख सकते ना? हाँ ब्रेक मत करो, ब्रेक करोगे तो फिर से प्रॉब्लम करेगा वो। ओके और कौन सा चाहिए, मैंने तो प्रोग्राम तो बहुत लिखे हैं आज। थैंक यू सर। फैक्टोरियल चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, और सम वाला। बहुत लिखे हैं, तुम लोग नोट डाउन करके रखने का फाइल नेम, नहीं तो मुझे याद नहीं रहता है फिर। और आई डोंट हैव टू बाय हार्ट द प्रोग्राम, मुझे तो सब ऐसे ही हो जाता है। एनी टाइम यू कैन टेल मी, आई कैन राइट ऑन द प्रोग्राम। फैक्टोरियल। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड 2 प्रैक्टिकल्स। 2 बोलेंगे तो उसमें प्रोग्राम बहुत है। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोस प्रैक्टिकल्स, राइट स्टूडेंट्स। चलो मैं बाकी का तुम लोग याद रखना, बाकी का मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। फाइल नेम याद रखा करो, देन आई विल सेंड इमीडिएटली। आई विल सेंड। Bye, sir. चलो बेटा, थैंक यू। हेलो सर। बोलो भाई बोलो। सर तो आप एक बार कल वापस फैक्टोरियल वाला वो कराओगे रिवाइज? बोलो करा देंगे, जिसको नहीं हाँ समझ सर, रहा है। एक बार सर फैक्टोरियल वाला रिवाइज करवा देना स्टार्टिंग के लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।